کراچی کے بڑے اسکول میں غفلت کا بڑا مظاہرہ. حبیب پبلک اسکول کے سوئمنگ پول میں بچہ ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. بچوں کو سوئمنگ کی کلاس دی جا رہی تھی. سوئمنگ پول بچوں کے قد سے گہرا تھا. پولیس نے سوئمنگ انسٹرکٹر کو حراست میں لے لیا. قتل خطا کی دفعات کے تحت مقدمہ درج. جب ووٹ پڑتا ہے تو سیٹ نکلتی ہے, جب زیادہ ووٹ پڑتا ہے تو زیادہ سیٹ نکلتی ہے, اور جب سب سے زیادہ ووٹ پڑتا ہے تو عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں. تو بھائی آپ فیلڈنگ کریں, بیٹ اس وقت عمران خان کے ہاتھ میں. اگر آپ اچھی فیلڈنگ کریں گے, اگلے 4 سال انہماک سے فیلڈنگ کریں گے, تو انشاءاللہ اگلے میچ کے اندر ہم آپ کو دوبارہ فیلڈنگ کی اجازت دیں گے. حکومت کے خلاف اپوزیشن کے پینتروں پر اسد عمر کا بلاول بھٹو کو پیغام. کہا عمران خان بیٹنگ پر ہیں, آپ فیلڈنگ پر توجہ دیں. اگر فیلڈنگ اچھی کر لی تو 4 سال بعد آپ کو پھر فیلڈنگ ہی ملے گی. بزدل بھارتی فوج کی ایل او سی پر پھر دہشت گردی. نکرن سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا. بچی سمیت 2 شہری شہید, 3 افراد زخمی. بھارتی گولہ باری سے 3 گھر بھی تباہ ہو گئے. پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی. پاکستان اب دشمن کو سبق سکھائے گا. بھارت کے لیے فضائی حدود مکمل بند کرنے پر غور. فیصلہ 24 سے 48 گھنٹے میں متوقع. شروعات مودی نے کی, ختم ہم کریں گے. فواد چودھری کا ٹویٹ. اسد عمر کہتے ہیں فضائی حدود کی بندش سے نقصان بھارت کو ہوگا. فضائی حدود کی بندش پر عالمی قوانین کو مد نظر رکھیں گے. معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان نے بتا دیا. کہتی ہیں وزیر اعظم کشمیریوں کی آواز بن گئے. وہ اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں. اب دنیا کو کشمیر کے لیے ڈو مور کرنا ہوگا. وزیر اعظم عمران خان سے چینی سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل زو کیونگ کی ملاقات. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کا مقبوضہ وادی سے کرفیو ہٹا کر عالمی تنظیموں کو وہاں بھیجنے کا مطالبہ. جنت نظیر وادی میں ظلم کے انگارے. کڑے پہرے کا 23واں روز. کشمیری بدستور گھروں میں محصور. کھانے پینے کی شدید قلت. چپے چپے پر قابض فوج کا قبضہ. کئی حریت رہنماؤں سمیت ہزاروں لوگ گرفتار. سخت ترین پابندیوں کے باوجود سورہ احتجاج کا مرکز بن گیا. کشمیر کی صورتحال پر برطانوی پارلیمانی وفد کو بھی تشویش. سیکورٹی کونسل سے مزید اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کر دیا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. کہا کشمیریوں کو آزادی سے جینے کا حق ہے. صدر آزاد کشمیر کی برطانیہ سے بطور سیکورٹی کونسل ممبر مؤثر کردار ادا کرنے کی اپیل. بھارتی بربریت کے خلاف باکسر عامر خان بھی میدان میں آ گئے. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لائن آف کنٹرول کا دورہ. چکوٹی سیکٹر میں شاندار استقبال. عامر خان کا کشمیریوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھانے کا اعلان. ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی ملاقات. کمال مصطفیٰ کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج تعینات کرتا ہوں کے ایم سی کے اندر. کل سے کام شروع کر دیں, 3 مہینے کے اندر کراچی کلیئر کر دیں. سارے اختیارات وسیم اختر صاحب نے مجھے دے دیے ہیں, تو میں نے یہ آرڈر ایکسیپٹ کر لیا ہے. کراچی کے کچرے پر سیاست کا کچرا. میئر کراچی کی چال بازیاں. پہلے مصطفیٰ کمال کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج لگایا. رات کو کام شروع ہوا تو دن میں فارغ کر دیا. کہا کمال بدتمیز ہیں, سیاست چمکا رہے ہیں. سابق سٹی ناظم کا بھی فوری جواب. بولے سیاست چمکاتا تو دشمن کو باس نہ کہتا. کمال تو کمال کر دیتا. مسئلہ اختیارات کا نہیں, کرپشن کا ہے. ایک آرڈر میئر کے سگنیچر سے ایشو کیا, 2 گھنٹے کے اندر میں نے اس آرڈر کو ایکسیپٹ کر لیا. اس کو سیاست میں تبدیل کیا گیا. آپ بالکل سنسیئر نہیں تھے. میں سیاست نہیں کر رہا. اگر سیاست کرتا ہوتا تو جو میرا دشمن ہے میں اس کو باس نہیں کہتا. پچھلے 24 گھنٹوں میں اب سب مان چکے ہیں کہ ایشو اختیارات کا نہیں ہے, ایشو نیت کا ہے. وسیم اختر صاحب نے اپنا ایشو کیا ہوا نوٹیفیکیشن وڈرا کر لیا.
ये क्या यू टर्न की हुकूमत है भाई? वसीम अख्तर साहब के इस एतराफ के बाद कि उनको फिल फॉर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। साबित हो गया मसला इख्तियारात का नहीं नीयत का है। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुर्तजा वहाब बोल पड़े, मेयर कराची को घर जाने का मशवरा दे दिया। कहा मुस्तफा कमाल ने वसीम अख्तर का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। फारूक सत्तार भी बरहम, खालिद मकबूल सिद्दीकी से मेयर कराची का इस्तीफा लेने का मुतालबा कर दिया। तो ये एक दूसरे पर इल्जामात हैं, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, क्या तय हुआ। कचरा मेयर कराची को ही उठाना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा पैसा खाया है और उनकी जिम्मेदारी है कि कचरा उठाएं। इस वक्त बल्दियाती निज़ाम है वो कमज़ोर नहीं है, लेकिन उसे कमज़ोर बनाया जा रहा है। अजब कचरे की गजब कहानी, कराची का बुरा हाल, शहरी जाएं तो जाएं कहां। अवाम मायूस हो गए। वफाकी वजीर अली जैदी की तसल्लियां, ट्वीट किया मनफी सियासत के ड्रामे पर हिम्मत ना हारे, कराची पर फोकस है, शहर साफ करेंगे। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट पर 41,13,000 रुपए वाजिबुल अदा। आइस्को ने बिजली मुनक़दा करने का नोटिस भिजवा दिया। रवा माह का बिल 35 लाख रुपए से जायद है। बिल बाकायदगी से अदा न किए जाने का इंकशाफ। सयाहत के फरोग के लिए केपीके हुकूमत का इक़दाम, नथिया गली में एडवेंचर टूरिज्म के लिए मसनूई झील बना दी। शहरियों की बड़ी तादाद झील देखने पहुंच गई। मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के निजी स्कूल में इंतजामिया की गफलत ने खानदान ही उजाड़ दिया। स्विमिंग पूल में डूबकर छठी जमात का 11 साला जीशान जिंदगी की बाजी हार गया। वालिद की मदियत में स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। निजी स्कूल में छठी जमात का तालिब इल्म जान से गया। 11 साला जिशान स्विमिंग क्लास ले रहा था कि स्विमिंग पूल में ही डूब गया। ये बच्चा नीचे चला गया, इसको जब देखा कि नीचे चला गया, क्यों चला गया, तो इसके ऊपर जंप कर दिया। इसको बोला बाहर आओ। बाहर आकर के इसको मैंने ऐसे लटा दिया और मैंने जब इसे प्रेस कर दिया तो इसके मुंह में ऐसी कोई चीज़ पता नहीं क्या थी, मुझे नहीं समझ, लेकिन मैंने उसको जल्दी निकाला और इसको दोबारा 2-3 दफ़ा प्रेस कर दिया। और फिर मैंने दूसरे बंदे को बता दिया कि साहब इसको पकड़ो और जल्दी डॉक्टर के पास जाए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो जांबर न हो सका और जिंदगी हार गया। अहले खाना पर मौत की खबर बिजली बनकर गिरी। बच्चे का वालिद इंतजामिया की गफलत पर फट पड़ा। कहाँ पे था वो स्टाफ, कहाँ पे था वो स्टाफ? हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं स्कूल वालों की जिम्मेदारी पे। मुझे नहीं पता कि यार ये उन्होंने किस तरह से इतनी बड़ी गलती कर दी कि जिसकी वजह से मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया। वालिद की मुदीयत में स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि वजीर आला सिंध ने वाक़ई का नोटिस लिया। कमिश्नर कराची और डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल से रिपोर्ट तलब कर ली। तदांजलिस, आज न्यूज़, कराची। अपोजिशन के लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला, साबिक वजीर खजाना असद उमर का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को पैगाम। कहा आप इन्हमाक से फील्डिंग करें, इमरान खान बैटिंग पर हैं। अगर आपने अच्छी फील्डिंग की तो आइंदा 4 साल के बाद एक बार फिर आप ही को फील्डिंग मिलेगी। बिलावल जरदारी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर बेगैरत का लफ्ज इस्तेमाल किया प्राइम मिनिस्टर के बारे में, चूं नहीं किसी ने की। और उन्होंने क्या कहा आगे, ये सारे जो विमेंस लिब के चैंपियंस है वो उसने क्या कहा, उसने कहा अगर मर्दों से मुकाबला करो मरियम के अरेस्ट होने में, उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी, किसी को विमेंस लिब नहीं याद आया। तो उनके लिए तो पहला मेरा पैगाम है कि देखो अब ये समझने की जरूरत है, जब वोट पड़ता है तो सीट निकलती है, जब ज्यादा वोट पड़ता है तो ज्यादा सीट निकलती है, और जब सबसे ज्यादा वोट पड़ता है तो इमरान खान वजीर आजम बन जाते हैं। तो भाई आप फील्डिंग करें, बैट इस वक्त इमरान खान के हाथ में। अगर आप अच्छी फील्डिंग करेंगे, अगले 4 साल इनमाक से फील्डिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह अगले मैच के अंदर हम आपको दोबारा फील्डिंग की इजाजत देंगे। तो आप सुकून से रहें, लॉकडाउन शॉकडाउन में कुछ नहीं होने वाला। और अब बुलेटिन में अहम खबर शामिल करेंगे। भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फौज ने नकरन सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 45 साला अब्दुल जलील और 3 साला नौशीन शहीद, जबकि 3 शहरी जख्मी हो गए। भारतीय फौज की गोलाबारी से 3 घर जलकर खाकिस्तर हो गए। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फिजाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। वफाकी काबीना के इजलास के दौरान इस हवाले से तजावीज़ पेश की गई, जिसका फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। भारत के लिए फिजाई हुदूद पर पाबंदी का फैसला करने से पहले तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है।
पाकिस्तान का भारत के लिए फिजाई हुदूद मुकम्मल बंद करने पर गौर। विफाकी काबीना के इजलास में तजावीज पेश। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर तफसील बताई। कहा कि भारत की पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान से तिजारत का ज़मीनी रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद करने पर भी गौर किया गया। ये भी कहा गया कि कशीदगी का आगाज नरेंद्र मोदी ने किया था और ख़त्म हम करेंगे। भारत के लिए पाकिस्तानी हुदूद की बंदिश का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। फिजाई हुदूद की बंदिश पर आलमी कवानीन को मद्देनजर रखेंगे, मुआविर खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने बता दिया। कहती हैं वजीर आजम कश्मीरियों की आवाज बन गए। वो अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा लड़ने जा रहे हैं। अब दुनिया को कश्मीर के लिए डू मोर करना होगा। इमरान खान साहब इंशाल्लाह यूएन की जनरल असेंबली में कश्मीरियों का जो मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, वो दुनिया जो अपने अमन के लिए, खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान को डू मोर कहती रही, अब जब हिंदुस्तान की तरफ से खित्ते का अमन खतरे में आया है, तो अब दुनिया को डू मोर करना होगा। एयर स्पेस बंद करने का फैसला बिल्कुल ठीक है। साबिक वजीर खजाना असद उमर भी बोल पड़े। कहते हैं फिजाई हुदूद की बंदिश से ज्यादा नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। एयर स्पेस बंद करना जो है वो एक ठीक कदम। इसमें होता ये है कि जिस वक्त हमारी फजाई हुदूद दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए बंद करते हैं तो ट्रैफिक ज्यादा जो है वो मगरिब की तरफ है और मशरिक की तरफ कम है। तो पाकिस्तान की फ्लाइट्स जो मशरिक की तरफ जाती हैं उस पर हमें जरूर नुकसान होता है, लेकिन भारत की फ्लाइट जो है मगरिब की तरफ उससे कहीं ज्यादा, तो उनको ज्यादा नुकसान होता है। तो नुकसान हमें भी होता है फजाई हुदूद बंद करने का, लेकिन उनको ज्यादा नुकसान होता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान से चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जियांग ने मुलाकात की है। वजीर आजम ने मसला कश्मीर सामने रख दिया, खदशा जाहिर किया भारत झूठा प्रोपेगेंडा कर सकता है। जनरल जोकियांग ने यकीन दिलाया कि चीन हर मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जनरल कियांग को बताया कि पाकिस्तान चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। एयर चीफ मार्शल ने जनरल जोकियांग से मुलाकात में पाक फिजाइया और चीनी फिजाइया के काबिल रश्क बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इयादा किया। जन्नत नज़ीर वादी मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज की मजालिम और पाबंदियों का आज 23वां रोज है। कश्मीर की हर गली कूचे से जिद्दोजहद आज़ादी की सदाएं उठ रही हैं। खामोश कश्मीर में आजादी की आवाज सू रहा। जिसकी गलियों में जद्दोजहद की नई दास्तानें जन्म ले रही हैं। सख्त तरीन पाबंदियों को रोंदते हुए जनाब साहब और आंचार के मकीन रोजाना घरों से निकलते हैं। एहतजाज करते हैं, आजादी के नारे लगाते हैं। नौजवानों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को रोकने के लिए इलाके के दाखिली रास्तों पर खंदकें खोद रखी हैं। आंचर में जो जितने भी रास्ते हैं ना, 8-9 रास्ते हैं। मेन रोड से आंचर की तरफ जाते हैं 8 रास्ते। हमने 8 रास्ते ब्लॉक हमने रखा है। लोग भी खड़े होते हैं पूरी रात, 24 घंटे हम पहरा देते हैं यहाँ। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की आमद का कोई इम्कान भी हो तो शटर बजाकर सबको अलर्ट किया जाता है। ये इलाका वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ समझा जाता था, लेकिन अब ये आजादी का मरकज बनता जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत ने सफाकियत की इंतहा कर दी है। कश्मीरी अवाम को प्यारों में शिरकत से भी रोक दिया है। BBC मकबूजा वादी से हकाइक सामने ले आया। उधर से टायर गैस आ गए, अयूब साहब यहाँ पर था, उनको वो नीचे वो टायर गैस पड़े थे 2, एक पड़ा इधर। यहाँ से एक बंदे ने उसको ये पाँव से उस नाली में उसको घुसा दिया। तो वो जो धुआं निकल रहा है, ऐसा धुआं उसमें निकल रहा है जैसे कि फमवार चश्मा निकल रहा है। उसने वही धुआं खाया, उस बेचारे को वहीं पर ऐसा हुआ। एक ऑटो वाला यहाँ पर है, उसने उससे बोला मैं अस्पताल ले जाऊंगा। उसने अस्पताल माना नहीं, उसने बोला उसको मुझे भाई के पास ले चलो। हम जोश में आ गए,
हमारा भाई था उस टाइम, दोस्त था, कुछ भी कर सकते थे। एक इंसान मरा है, जानवर नहीं मरा है। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ और कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तानी निशात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान भी मैदान में आ गए। LOC के चिकोटी सेक्टर का दौरा किया, DG ISPR और सदर आज़ाद कश्मीर से मुलाकात भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि दुनिया में कश्मीरियों का सफ़ीर बनकर जाऊंगा और मकबूजा आबादी के हालात बताऊंगा। किलिंग्स, बच्चे को मारे और इनोसेंट फीमेल्स को भी डूइंग वेरी बैड थिंग्स। बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते क्यों, स्कूल्स बंद है, गवर्नमेंट भी बंद है, सब बंद है उधर। सो वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। वो बस अभी वो उनका होप है हम सब अराउंड द वर्ल्ड, हम मुसलमान उनको हेल्प करें। They just need a voice and I want to be that voice for them to go out there and tell them that look, I am on your side. I've won fights, I've lost fights, but I've come back stronger. Now the people of Kashmir need to come back stronger from this, and inshallah they have to have hope. And I'm their champion and they can be champions as well. सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा है कि मसला कश्मीर सियासी और सिफारती कोशिशों से जिंदा है। कश्मीरी खून देते रहे और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। कुछ लोगों ने अमन की आशा में इधर उधर भटकने की कोशिश की थी, मगर अवाम ने इन्हें सीधा रास्ता दिखा दिया। जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने पर सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है। इसी हवाले से इस्लामाबाद में सेमिनार का इनाकाद किया गया। सेमिनार में सदर आज़ाद कश्मीर और हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक, राबिया मलिक और मुल्क भर से आई खवातीन समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब में सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि मसला कश्मीर पाकिस्तान की सियासी और सफारती कोशिशों से जिंदा है। कश्मीरी खून देते रहे और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। मैं ये कहता हूँ कि मसला कश्मीर जिंदा क्यों है, इस वजह से कि कश्मीरियों ने खून दिया है और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे कायम रहा है। मिशाल मलिक ने कहा कि सलामती कौंसिल का इजलास बड़ा ब्रेक थ्रू है। हमें अब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले के हल पर फोकस करना चाहिए। सदियों के बाद पॉलिसी ये है कि अब इसको सिर्फ फोकस ही करना है कि जो UN की रेजोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक इसके लिए इंटरनेशनल कैंपेनिंग, कन्वेंसिंग, लॉबिंग, नेटवर्किंग करनी है इंटरनेशनली। तकरीब में कश्मीरी नगमे और टैबलों से कश्मीर के साथ अपनी मोहब्बत और जज्बात की भी नुमाइंदगी की। रोशनियों के शहर कराची की बात करेंगे, जिस पर कचरे पे सियासत से माहौल ताफुन ज़दा हो गया। पहले मेयर कराची ने मुस्तफ़ा कमाल को 3 माह के लिए गार्बेज का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया, फिर सुबह होते ही मुअत्तल भी कर दिया, जिसके बाद कराची की सियासत में डर्टी राउंड शुरू हो गया। इल्जामात की सियासत के बाद अब इस्तीफों के मुतालबात होने लगे। थ्रिल, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर गजब कचरे की अजब कहानी। रिपोर्ट देखिए। को सस्पेंड किया है, मसला किरदार का है, मसला करप्शन का है। डर गए। कराची का कचरा या सियासत का झगड़ा, शहरी इंतजामिया की सफाई से ज्यादा नुमाइश पर तवज्जो। कमाल मुस्तफा को प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज तैनात करता हूँ KMC के अंदर। कल से काम शुरू कर दें, 3 महीने के अंदर कराची क्लियर कर दें। मेयर के इस बयान से शुरू हुआ एक दूसरे पर इल्जाम का नया सिलसिला। सारे इख्तियारात वसीम अख्तर साहब ने मुझे दे दिए हैं, तो मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। जोश में आकर वसीम अख्तर ने नहला फेंका, मुस्तफा कमाल को 3 माह के लिए ओहदा दे दिया। मुस्तफा कमाल ने भी नहले पर दहला दे मारा। मेयर साहब मेरे बॉस हैं, अब तो इनके डोमेन में जितना भी म्यूनिसिपल सर्विसेज का काम है, गार्बेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उसका सबसे उन तमाम का इंचार्ज अब से मैं हूँ। रातों रात सफाई का आगाज हो गया। सुबह हुई तो फिल्म में एक नया मोड़ आ गया। मेयर कराची ने मुस्तफा कमाल को मुअत्तल कर दिया। आज सैयद मुस्तफा कमाल को सस्पेंड किया है फ्रॉम BD गार्बेज। मुअत्तली के बाद कमाल भी वजद में आ गए। फिर दोनों में लगा 36 का आंकड़ा। के इख्तियारात का मसला नहीं है, मसला किरदार का है, मसला करप्शन का है। दोनों की सियासी जंग में कचरे की कहानी आजहानी बन गई। मेरा नाम मैं, तेरा नाम तू, तू सच्चा या मैं। एक तरफ कचरे पर सियासत का प्रचार तो दूसरी जानिब वसीम अख्तर और मुस्तफा कमाल की लफ्जी तकरार। शहर से सफाई के बजाय अब सियासी कचरेबाजी